Hello students and welcome back again in my channel in which we are going to discuss your next chapter of class 7th, which is heat and temperature. Students, I've skipped that fiber to fabric chapter because I will continue it later. It's quite like boring types and I just want your each and every moment so interesting by including lots and lots of spices in the form of knowledge. Okay students, so What do you mean by hot or cold? कोई भी चीज गर्म है ठंडी है कैसे पता चलती है? When we feel it, when we touch it, क्या हम हीट को अपने आईज से देख सकते हैं? No. As such, we have 5 sense organs, namely eyes, nose, tongue, ears, and skin. Got it? So, through all these things, we are able to sense something. We are able to coordinate that thing with our brain. So, with the sense organ skin, we are able to feel this hot or cold. Students, this hot or cold depend on what? Release of heat. Means if a substance is releasing more and more heat, then it is a hot substance, and when a substance is releasing less heat, then it is a cold substance. For example, when we put ice over our palm, we feel so cool. Why? Because ice get energy from our palm and our palm release energy. So temperature decreases and we feel cold. Got it? Same with when we cook something. In the initial stage, it is very hot because their heat is so high, so we feel hot. Got it? Students, what do you mean by heat? Heat is a form of energy. Next is temperature. Temperature is measurement of heat. Means, what is the temperature? This time we all have a thermal screening test. Whenever we go anywhere, we just go through a process of thermal screening. What that machine check? That machine check temperature, means measurement of heat of our body. So, measurement of temperature. Temperature get measured by thermometer. We have two types of thermometer, laboratory and clinical. Clinical thermometer, mainly you all have seen that thermometer used by doctors. बेटा मुंह खोलो, थर्मोमीटर लगाओ, कितना टेम्परेचर आया, बच्चे को कितना बुखार है, ये सब कैसे पता चलता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर से. एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर से पता चलता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है. फिर किसी भी, अगर आप वो कोको कोला पी रहे हैं तो वो कितने टेम्परेचर पे है, वो सब किससे पता चलेगा? आपके लैबोरेटरी थर्मोमीटर से. हम ये दोनों थर्मोमीटर्स करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में. बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरिंग स्केल्स. एंड इससे बेटा 110% क्वेश्चंस आता है और पिछले साल भी बच्चे बहुत झेले हैं जस्ट बिकॉज कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं. ठीक है? ओके. सो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेजरिंग स्केल्स टेम्परेचर के लिए कौन कौन सी है. वो है डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. गॉट इट? आप लोग डिग्री सेल्सियस से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, इवन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी होंगे, बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होता. ठीक है? वो किस में होता है? वो आपके फ़ारेनहाइट में होता है. 98 डिग्री सेल्सियस में तो हम फट जाएंगे एकदम. ठीक है? ओके फाइन. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट? डिग्री फ़ारेनहाइट -32 upon 180 is equal to degree Celsius upon May 10 is equal to K minus 273 upon May 100. एक सिंप्लिसिटी कर देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, मतलब with cutting putting, this comes to be 9, this comes to be 5, this comes to be 5. ठीक है? अब मैंने ये क्यों कहा कि ये हमारे लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आज हम करने वाले हैं इसके खूब सारे कन्वर्जन्स. ठीक है? तो वो कन्वर्जन कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं. वो इजी एग्जांपल है कि मैंने आपको कहा
कि आपके बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट करिए इनटू फ़ारेनहाइट। अच्छा, तो हमको जिसमें कन्वर्ट करना है वो फॉर्मूला उठाना है, जिससे कन्वर्ट करना है वो फॉर्मूला उठाना है। फाइन, ओके। सो 37 डिग्री सेल्सियस, अच्छा डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या है 5, लिख लिया हमने 5 इज इक्वल टू कन्वर्ट किस में करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। सो 37 अपॉन में 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये आ जाएगा यहाँ पे मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा 37 इंटू 9 अपॉन में 5 रखना चाहें तो रख सकते हैं, इज इक्वल टू f माइनस 32। अगर आप इसको इधर लेकर के जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसको करिए, 9 7 जा 63, 6 कैरी 3 यहाँ पे, ठीक है। इधर दिस कम्स टू बी 3 इंटू हो गया अपॉन में 5 प्लस 32। अब 32 के साथ हमको करना है इसका एलसीएम लेना है, तो फिर हम क्या करेंगे 3 प्लस दिस कम्स टू बी 160 अपॉन में 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। दिस कम्स टू बी 493 upon में 5, this comes to be 90, then 43, 8.6 is equal to Fahrenheit. Means 37 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, एक मैं एग्जाम्पल इधर ले लेती हूँ और बाकी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल हमने लिया 28 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन। अब फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला क्या था 28 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। सो दिस माइनस 273, अब ये इस साइड आ जाएगा, दिस कम्स टू बी 28 प्लस 273 विच कम्स टू बी कितना आएगा ये 8 प्लस 3 11, दिस कम्स टू बी 301 मीन्स 28 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 301 केल्विन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू डू सेवरल कन्वर्जन्स। फॉर एग्जाम्पल केल्विन में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री फ़ारेनहाइट में 36 डिग्री सेल्सियस एंड 286 केल्विन, सेल्सियस में 391 केल्विन 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई भी डाउट हो बेटा डू कमेंट एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।